بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ فقہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے فقہ میں جو چیز پڑھی تھی وہ ہے آداب الخلا۔ آپ کو یاد ہوگی چیز، بیت الخلا کے آداب کیا ہیں، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے تیمم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ قال عمار بن ياسر رضي الله عنه أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه رواہ البخاری و مسلم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہمیں طہارت کے مسائل اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد فقہ میں تیمم ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیمم عربی لفظ ہے جس کا معنی تیمم یا تیمم کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ تیمم کو تیمم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پانی کے عدم وجود کی وجہ سے، یعنی پانی موجود نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو انسان طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی کی طرف رخ کرتا ہے یا مٹی کا ارادہ کرتا ہے کہ چلو میں مٹی سے طہارت حاصل کروں، یہ مطلب وہی تیمم کروں، اس لیے اس کو تیمم کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تیمم جو ہے، ایک جملہ یاد رکھیے، تیمم جو ہے وضو اور غسل کا بدل ہے، ریپلیسمنٹ۔ تیمم جو ہے وضو اور غسل کا بدل ہے۔ کیا مطلب بدل ہے؟ ضرور، یعنی آپ کو وضو کرنا ہے نماز کے لیے یا عبادت کے لیے۔ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی آگے آئے گا، جیسے پتہ ہے آپ کو کب کرنا ہے، آگے آ رہا ہے، تو اس کی جگہ ریپلیسمنٹ یہ ہے کہ آپ تیمم کر لیجیے۔ بس وضو نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر لیجیے۔ اسی طریقے سے غسل کرنا ہے آپ کو، آپ نہیں کر سکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ جو ہے تیمم کر لیجیے۔ غسل نہیں کر سکتے نا، تو آپ کیا کیجیے؟ تیمم کر لیجیے۔ اس کو کہتے ہیں تیمم وضو اور غسل کا بدل ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اس کلاس میں 3 چیزیں۔ نمبر 1 تیمم کی دلیل، نمبر 2 تیمم کب کرنا، تیمم کب کیا جائے گا، نمبر 3 تیمم کا کیا طریقہ ہے۔ پہلی چیز تیمم کی دلیل سورہ مائدہ کی مشہور آیت جو آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ،
या तुम टॉयलेट से आए हो, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों को छुआ, फलम तजिदू माआ, और तुमको पानी न मिले, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्ह, उस पाक मिट्टी से अपने चेहरे को, अपने हाथों को पोंछो। युरीदुल्लाहु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, फिद्दीन मिन हरज, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि तुमको तंगी में रखे, वलाकि युरीदु लियुतहिरकुम, लेकिन अल्लाह चाहता है कि वो तुमको पाक कर रखे। ये पूरी आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 6, जिससे ये बात मालूम हुई है कि अगर कोई इंसान बीमार हो और पानी न मिले तो वो तयम्मुम कर ले, कोई इंसान सफर में हो और उसके लिए मुश्किल हो, पानी ना मिले सफर में वुजू करने के लिए, तो वो तयम्मुम कर ले, कोई टॉयलेट से आए, बाथरूम से आए और उसको पानी ना मिले तो वो तयम्मुम कर ले, ठीक है। औ लामस्तुमुन निसा, या औरतों को छुआ से मुराद यहाँ हम बिस्तरी है, जो जिससे गुस्ल वाजिब हो जाता, जाहिर बात। लामस्तु मतलब टच नहीं है, तो बीवी से हम बिस्तरी हो गई, और फलम तजिदू, इन्हें ये चारों अलग अलग कंडीशन, बीमारी हो या सफर हो या टॉयलेट या इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करना, तो ऐसी सूरत में अगर पानी न मिले तो अल्लाह ने कहा, फरमाया, इजाजत दी, तयम्मुमु फतयम्मुमु सईदन तय्यिबा, आप जो है पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। फिर इसी आयत में तयम्मुम का तरीका भी आया है कि उसको जो है पाक मिट्टी से अपने हाथों को अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर फेरो, पोंछो, मसाह करो, मसाह छूना, जैसे आगे आ रहा है तरीका उसका। तो ये जो है अल्लाह ताला ने बयान किया। मजीद एक बात बयान की गई है, भाई अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि आपको तंगी में रखे। क्या मतलब? अब देखिए, पानी नहीं मिल रहा है, एक परेशानी है ना, सफर में है या वुजू करना है या गुस्ल करना है, ठीक है, और आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो अब आप पानी ढूंढो, तलाश करो, हाँ? तो अल्लाह इसमें परेशानी है, तंगी तो अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह आसानी चाहता है, हरज नहीं है दिन में। मट्टी कहीं में मिल जाएगी, आप मट्टी कहाँ मिलती है, बल्कि जैसे आगे बताएंगे हम इंशाल्लाह, दीवार जिसकी असल मिट्टी हो, या असल मिट्टी ही हो या जिसकी असल मिट्टी हो, आप जो है उससे तयम्मुम कर सकते हो। तो इससे हरज ने खत्म हो गया ना, रफल हरज जिसको कहते हैं, तंगी नहीं हुई, आसानी हो गई। तो अल्लाह ताला तंगी में नहीं डालना चाहता, अल्लाह चाहता आपको पाक करना चाहता है किसी भी तरीके से, पानी से या मट्टी से, वुजू से या तयम्मुम से, गुस्ल से या तयम्मुम से। तो ये आयत बहुत प्यारी आयत, इसमें तयम्मुम की दलील के साथ शरीयत इस्लामिया में जो है किसी किस्म की तंगी नहीं है, इसका भी इल्म हुआ, और तयम्मुम का तरीका भी हमें इसी में बताया गया। चलिए अगला पॉइंट, तयम्मुम कब किया जाएगा या तयम्मुम कब कर सकते हैं। 4 सूरतों में आप तयम्मुम, 4 सूरत में, 4 हालात में आप तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 1, पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ये वुजू का बदल है, तो पानी हो तो क्या करेंगे, वुजू करें। हमने बताया कि ये गुस्ल का रिप्लेसमेंट है, गुस्ल का बदल है, पानी हो तो गुस्ल करेंगे ना। तो जब पानी ही नहीं है तो वुजू भी नहीं हो सकता, गुस्ल भी नहीं हो सकता, अब तयम्मुम क्या है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि वुजू की जगह तयम्मुम लेता है बस, कि अगर आपको वुजू करना है और पानी अवेलेबल नहीं है तो आप तयम्मुम करेंगे, लेकिन गुस्ल जो कि नहाना है, तो उसकी बदले में भी तयम्मुम किया जा सकता है। ये बाद लोगों को शायद नहीं मालूम है, आज इंशाल्लाह मालूम हो गया। आप लोगों को अगर ना मालूम हो आप में से बात। चलिए, दूसरी कंडीशन, पानी है लेकिन थोड़ा है जिससे खाना पानी का काम हो सकता है,
तयम्मुम करेंगे तो पी नहीं सकते, उससे खाना नहीं पका सकते। अगर खाना पकाएंगे, जैसे सालनों में, चावल में, खाने में, इसमें पकाने में यूज होता है ना पानी, तो वो पानी अगर हम यूज कर लेंगे खाने में, पकाने में या पीने के लिए, वुजू नहीं कर सकते, यानी थोड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में भी, ऐसी हालत में भी तयम्मुम किया जा सकता है, ये बता रहे हैं। चलिए नंबर 3, पानी है लेकिन उसके इस्तेमाल से नुकसान का खदशा है, बीमारी है, और डर ये है कि पानी इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, तकलीफ ज्यादा होगी, तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम किया जा सकता है। कितने हो गए? 3। चौथा और आखिरी, पानी है, बहुत ठंडा है, सर्दी है, जैसे आजकल मौसम चल रहा है, और पानी को गर्म करने का कोई इंतजाम भी नहीं है, इस सूरत में भी तयम्मुम किया जा सकता है। 4, एक मर्तबा और फिर आप बात को आगे बढ़ाता ताकि याद रहे। कब अगर आपसे हम पूछें या कोई आपसे पूछे, दावा सेंटर की क्लासेस में आप अटेंड करती हो और हमने सुना है कि आप फिक्र भी पढ़ रही हो या फिक्र पढ़ रहे हो आप तालिब इल्म, जरा बताओ तो सही कि तयम्मुम कब कब किया जा सकता है। तो आप उनको जवाब देना, तयम्मुम सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दावा सेंटर की क्लासेस एकेडमी बसीरा के नाम से बसीरा, तो ये हम अटेंड कर रहे हैं और हमें ये मालूम हुआ है कि 4 सूरतों में आप तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 1, पानी ना हो। नंबर 2, पानी है लेकिन खाने पीने के लिए इस्तेमाल थोड़ा है, खाने पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो तयम्मुम नहीं कर सकते, वुजू नहीं कर सकते। अगर वुजू कर लेंगे या नहा लेंगे तो खाने पीने का मसला हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में भी कर सकते हैं। तो नंबर 3, पानी है लेकिन आप नहीं है सेहत से, आप सेहत से नहीं, आप बीमार हैं। अच्छा बीमार में, अच्छा यहाँ इसलिए जरूरी है जो मैंने बताया, बीमारी एक तो मामूली होती है, जैसे बुखार है, आप पानी यूज कीजिए तो बुखार नहीं बढ़ेगा आपका, बल्कि अच्छी चीज है, कहते हैं पानी यूज करना। हम ये कह रहे हैं कि पानी है, बीमार आप ऐसे हैं कि पानी इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी बढ़ने का डर, खदशा है, हमने कहा ऐसी सूरत में आप तयम्मुम कर सकते। नंबर 4, पानी ठंडा है या मौसम सर्द है, सर्द है, बाज़ जगह जो है बहुत सर्दी है, जद्दा तो माशाल्लाह जद्दा है, न सर्दी ज्यादा न गर्मी ज्यादा, लेकिन बाज़ इलाकों में सख्त सर्दी पड़ी हुई है, इंडिया में यूपी वगैरह में बहुत सर्दी होती है, शदीद किस्म की सर्दी। यहाँ भी जुबेल में मैं अपना बता, जुबेल में पहली मरतबा मैंने हीटर यूज किया है सोते वक्त कमरे में, जुबेल में, अल्लाह जज़ाय खैर दे नासर भाई को या वहाँ के साथियों में। मैं हैरान हो गया कि इतनी सर्दी सऊदी में, जुबेल में तो होती है सऊदी में माशाल्लाह से, तबूक वगैरह में तो बर्फबारी, तो सर्दी ज्यादा है। गर्म करने का इंतजाम अगर है ना तो आप गर्म करके पानी को यूज करेंगे वुजू करने के लिए, जैसे हीटर चला दे, आप वुजू कर लीजिए, नहा लीजिए, लेकिन हीटर ना हो, ना गर्म करने का कोई इंतजाम ना हो तब, और सर्दी बहुत है, जैसे यूपी में गांव वगैरह में, क्या करेंगे आप, पानी का इस्तेमाल करेंगे तो डर है कि मतलब बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आप जो है वो करेंगे, क्या, तयम्मुम करेंगे। तो ये 4 चीजें हुई जिससे जो है हमें पता चला कि इन सूरतों में हमें तयम्मुम करने की इजाजत है। इसी के साथ ये क्लास खत्म, बाकी और चीजें जो है पढ़ेंगे अंडर क्लास में, क्योंकि वक्त का मसला भी है ना। अब बाकी है तयम्मुम का तरीका, सिर्फ तो तयम्मुम कैसे करेंगे, एक, और तयम्मुम कब टूट जाता है, 2 बात, तयम्मुम को बातिल करने वाली चीज। ठीक है, ये इंशाल्लाह बहुत आसान है, सब आसान है, दीन पूरा आसान है, दीन मुश्किल ये अगली क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक हम रोकते हैं। क्या पढ़ा हमने फिक्र में? फिक्र में हमने 2 चीजें पढ़ी आज की क्लास में,
کیا دو چیزیں پڑھی ہم نے؟ تیمم کی دلیل ہم نے پڑھی، اور کن حالات میں تیمم کرنا ہمارے لیے جائز یا اجازت ہے، کب تیمم کریں گے یہ ہم نے پڑھ لیا۔ 1 منٹ کے بعد حدیث کا گھنٹہ شروع انشاءاللہ۔